students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to continue with the chapter Manufacturing Industries for class 10th Geography. This is part 2 for this chapter. I have already uploaded part 1 जिसका link description box में लिखा हुआ है. आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं. Let's start with today's class. But yes, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon so that you keep getting the notifications regularly. Let's start today's class on manufacturing industry. In part 1, I discussed about the classification of industries and I also included cotton textile industry. Today I am going to start with jute industry. When we talk about jute industry, India is the largest producer of raw jute and jute goods in the world. Most jute mills are located in West Bengal. I discussed about the factors affecting the location of industry in part 1. So what are these factors which are responsible for setting up jute mills mostly in West Bengal? The first jute mill was set up in 1859 at Risra, which is near Kolkata. Factors है, first is proximity of the jute producing areas. जहाँ पे जूट प्रोड्यूस किया जाता है वो एरियाज बहुत क्लोज बाई है इन जगहों में जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया. सेकेंड इज इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्टेशन जब है तो कॉस्ट काफी कम है, तो ये भी एक कारण है कि ये जूट मिल्स यहाँ पे सेटअप की गई. थर्ड इज दैट दिस एरिया हैज अ गुड नेटवर्क एज फार एज द रोडवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज आर कंसर्न. तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाती है. तो ये है कुछ फैक्टर्स विच यू मस्ट नो बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विच यू शुड इंक्लूड इन योर आंसर. Now I have written few questions under each heading, you can see, because these are the questions which are comprehensive in nature and you should be able to comprehend the ki how this has to be the justification basically you should be able to give. Discuss the challenges faced by the jute industry. Most of the industries actually face some kind of challenge. Okay, so jute industry के जो challenges है वो क्या है? There is a stiff competition in the international market from synthetic, you can say, substitutes. Synthetic substitutes की अगर हम बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा आजकल बोला भी जाता है, प्रमोट किया जाता है कि जूट बैग्स यूज़ होने चाहिए और प्लास्टिक या पॉलीथीन वाले जो बैग्स हैं वो यूज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं हुआ है अभी तक और लोग ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत उनको ड्यूरेबल लगते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत इजीली मिल जाते हैं. तो ये एक कारण है. सो जूट प्रोडक्ट्स आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम दीज सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. सेकेंड इज इंडिया इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग जूट प्रोडक्ट्स लाइक ब्राजील, फिलीपींस एंड बांग्लादेश. सो ये दो मेन पॉइंट्स है विच शुड बी देयर इन योर आंसर. Now to face these challenges or to overcome these challenges, a step was taken in 2005 in which the National Jute Policy was formulated. So the National Jute Policy was formulated in 2005 and what was the objective of formulating this policy? ये policy इसलिए formulate की गई थी ताकि ये जो जूट का productivity है इसको बढ़ाया जा सके, quality को improve किया जा सके और जो फार्मर्स जूट उगाते हैं उनको भी एक अच्छा प्राइस अवेलेबल किया जाए, क्योंकि अगर फार्मर्स को इंसेंटिव होगा या प्रॉफिट होगा यहाँ पे जूट प्रोडक्शन से तभी वो इसको एज एन एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाएंगे. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी यू मस्ट नो इज फर्स्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज टू इम्प्रूव क्वालिटी, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्राइस टू द फार्मर्स and fourth is enhancing the yield per hectare. Per hectare जमीन में जो उपज है, yield है, उसको भी increase करना, उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो किसानों को. Second is sugar industry. When we talk about sugar industry, well, sugar is very important in our day-to-day life. तो sugar के बिना तो गुजारा नहीं है. So India is the largest producer of gur and khansari.
ये एक पॉइंट पता होना चाहिए. India is the second largest producer of sugar. Sugar mills are spread over UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, etc. So you can see that so many states have these sugar mills concentration. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट थिंग इज जो तुम्हें एज ए होल पता होना चाहिए शुगर इंडस्ट्री के बारे में, दैट इट इज सीजनल इन नेचर. सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सीजन होते हैं जिसमें ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है. उसका कारण ये है कि शुगर बनाई जाती है शुगर केन से. शुगर केन के अंदर एक सुक्रोज करके नाम है कंटेंट का, वो होता है. सुक्रोज होता क्या है बेसिकली? सुक्रोज इज अ मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. तो ये जो मॉलिक्यूल होता है सुक्रोज एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है जो रिक्वायर्ड होती है शुगर बनाने के लिए. और ये जो सुक्रोज कंटेंट होता है गन्ने के अंदर या शुगर केन के अंदर, इसकी जो मतलब आप कह सकते हो टाइम है, मतलब बहुत कम समय तक ही ये अच्छी क्वालिटी में रह पाता है. क्योंकि अगर गन्ने सूखना शुरू हो जाते हैं तो ये सुक्रोज भी ड्राई अप होता चला जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता नहीं है. और उससे मतलब क्या होता है कि शुगर बनाने का जो प्रोसेस है ओवरऑल वो सारा इम्बैलेंस हो जाता है. तो ये इसलिए आप कह सकते हो कि सीजनल इंडस्ट्री है कि कुछ सीजन्स में ही इन इंडस्ट्रीज में काम होता है. नाउ द क्वेश्चन है, इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. व्हाई? शुगर इंडस्ट्री जो है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में बात की थी. सो कोऑपरेटिव्स बेसिकली आर सेटअप बाय फ्यू पीपल who pool in their resources, and in this case what happens that whatever is the profit and whatever is the loss, it is shared by all. तो इसलिए बोला जाता है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक तो ये क्योंकि शुगर इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है, एक ही कुछ सीजन में ही ये चलती है. और दूसरा ये है कि इसमें जो प्रॉफिट और लॉस अगर होता है तो कोऑपरेटिव्स में सब इक्वली शेयर हो जाते हैं, तो बर्डन जो है वो किसी एक के ऊपर नहीं पड़ता है. सो ये कारण आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि व्हाई इट शुड बी मोर, इसकी जो प्रमोशन है वो होनी चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर में. एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो दैट शुगर केन इज एन एनुअल क्रॉप. शुगर इंडस्ट्री सीजनल है नेचर में, लेकिन शुगर केन जो है वो एनुअल क्रॉप है, पूरा साल लग जाता है उस क्रॉप को तैयार होने में. तो जो किसान होते हैं वो मेनली फुल ईयर दे आर एंगेज्ड इन दिस क्रॉप शुगर केन एज अ क्रॉप. Next question is, why has there been a tendency of sugar mills to shift towards western and southern states? पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि शुगर मिल्स जो है वो मतलब मूव कर रही है हमारी साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ और वेस्टर्न जो हमारा रीजन है कंट्री का उसकी तरफ. उसके क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि फर्स्ट थिंग इज दैट दीज स्टेट्स हैव गुड और यू कैन से बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. और शुगर केन के जो फसल को तैयार होने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी हैं. तो अब अगर शुगर केन को अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगी तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर सुक्रोज का कंटेंट होता है वो भी हाई लेवल का होता है या हायर सुक्रोज कंटेंट उसमें हो जाता है. ये दो कारण हैं जिनकी वजह से ये जो शिफ्ट है वो इन स्टेट्स की तरफ ज्यादा हो गया है पिछले कुछ सालों में. सो दीज आर two main questions which you should know. Next is iron and steel industry. Iron and steel industry is first thing you should know is called as a basic industry. Why? Because all other industries, heavy industries हैं, light industries हैं, medium industries हैं, सारी की सारी जो industries होती हैं वो अपने raw material के लिए या अपनी machinery के लिए they are basically dependent on this industry. Next is it is also called as a heavy industry. So first thing is it is called as a basic industry. क्यों कहा जाता है वो ये मैंने पॉइंट लिख दिया. सेकेंड इज कि अब इसको हैवी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? दैट इज बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, इस इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है या जो भी गुड्स बनाई जाती है वो सब बहुत हैवी होती हैं, बल्की होती हैं. तो इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है. इट रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम. क्योंकि हाई हैवी और बल्की मटेरियल होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है, एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है. इंडिया रैंक्स फोर्थ एज क्रूड स्टील प्रोड्यूसर. ये इंडिया की रैंकिंग है. नाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इज, फर्स्ट, व्हाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? एक्चुअली यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इसका क्वेश्चन का और इसका आंसर जो है वो सिमिलर है थोड़े, ठीक है.
why is India not able to perform to its full potential in this industry? So ये दो क्वेश्चन है जो काइंड ऑफ सिमिलर है. अब यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो कि फर्स्ट थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट, सेकेंड इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग ऑयल which is a necessary ingredient for this steel industry. So first is high cost, second is low availability, low productivity of labor. जो लेबर है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं इन इंडस्ट्रीज में. एंड सेकेंड इज डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो रेगुलर सप्लाई है वो नहीं है, तो सप्लाई डिसरप्ट होती रहती है, जिसकी वजह से भी लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो ये कारण है जो आप यहाँ पे इन दोनों आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाई डज छोटा नागपुर रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ये जो छोटापुर नागपुर रीजन है वहीं पे क्यों ज्यादा इंडस्ट्रीज ये वाली लोकेटेड है. जैसे यहाँ पे हमने जूट के बारे में बात किया था, तो देयर वर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्टेड दिस. Similarly, here also there are certain factors which are responsible for this. For example, you can say that this region has vast reserves of coal and iron ore. First point, बहुत ज्यादा reserves है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पाया जाता है ये सब. Second is क्योंकि बहुत ज्यादा reserves है तो iron ore is obviously cheaply available in this region. So दो point हो गए. Industry setup करने के लिए हमने जो factors discuss किए थे उसमें ये बहुत चीजें थी कि availability of cheap raw material, proximity to the location of you can say कि जहाँ से raw material obtain किया जाता है, तो वो चीजें थी जिनकी वजह से इस region में ये concentration है. Next we talk about another industry which is called as aluminium smelting. See, यहाँ पे मैं तुम्हें एक और भी बात बताना चाहूंगी कि जो स्टील है, स्टील को बनाया कैसे जाता है. बेसिकली स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर है, आयरन ओर इज हीटेड एंड मेल्टेड इन बिग फर्नेसेस, और उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और उसमें कार्बन को ऐड किया जाता है. तो ये स्टील प्रोसेसिंग का आप स्टेप थोड़ा सा समझ सकते हो. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री रिलेटेड टू यू कैन से मेटल्स. लाइट है. एल्यूमिनियम की कुछ खास चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज लाइट है, हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन. कोरोजन का प्रोसेस आपने पढ़ा ही है, साइंस में भी पढ़ा है. डेवलपिंग ऑफ यू कैन से रस्ट ओवर द आयरन प्रोडक्ट व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन और इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर. तो वो कोरोजन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से ये आयरन प्रोडक्ट्स पे रस्ट डेवलप होता है, जो इस पे नहीं होता है, एल्यूमिनियम में नहीं होता है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो वायर्स वगैरह में भी काम आता है. यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स. जब दूसरे मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग इसको ऐड किया जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, तो स्ट्रेंथ भी ठीक है इसकी. तो ये एक बहुत ही रिक्वायर्ड है एज इन यू कैन से मटीरियल. Used to manufacture aircraft, utensils, wires, ये इसके uses हैं. Bakelite, bauxite. Bauxite is the raw material which is used in the smelters. ये जो iron aluminium smelting का process होता है उसमें bauxite use किया जाता है as a raw material. ये points हो गए aluminium smelting के बारे में. Next is chemical industries, and मैंने यहाँ पे कुछ सारा का सारा कुछ जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बुक में इनके बारे में वो मैंने यहाँ पे लिख दी. फैक्ट्स है बेसिकली, ज्यादा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग है, काफी बढ़ रहा है हमारी कंट्री में. डाइवर्सिफाइंग है, डाइवर्स हो रहा है, मतलब वेराइटी, डिफरेंट वेराइटीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑफ दीज केमिकल्स को यूज करके ये इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजें बना रही हैं. इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब बड़ी यूनिट भी हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की जाती है कैपिटल की. छोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है जिसमें कम कैपिटल है, कम इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ स्मॉल है. ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल्स एंड यूज फॉर क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाता है इसको, केमिकल्स को. सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें केमिकल्स को यूज किया जाता है. सो केमिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो फास्ट ग्रोइंग इन आवर कंट्री. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, it is fertilizers, they are chemically produced in the industries, factories.
हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है फर्टिलाइजर्स और इस फर्टिलाइजर्स के बारे में कि कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए। 3 टाइप के यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं जो मेन है हमारी कंट्री में, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट। सो ये तीनों के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। उसके बाद है सीमेंट इंडस्ट्री। फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904. Decontrol of price and distribution since 1989 led the cement industry to make rapid strides. Decontrol of price and distribution. 1989 onward और you can say 1990 से मेनली हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूज किए गए थे उसकी वजह से बहुत लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उनके भी कुछ इफेक्ट्स जो थे वो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्पीड अप हुआ, स्पेशली इन सम सेक्टर्स, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में। तो ये यहाँ पे काफी ग्रोथ हुई है इन इंडस्ट्रीज की। इसी तरीके से अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल की फील्ड में भी बहुत ग्रोथ हुई है। मतलब 15 साल से भी कम पीरियड को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटम ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री की। हर तरीके के जो व्हीकल्स हैं या हर तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। अगर हम इसकी बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की तो आप कह सकते हो कि 128 लार्ज एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स एज गिवन इन योर बुक आर देयर इन आवर कंट्री. So these are the various types of industries. One more is left and that is the IT and electronics. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को यहीं पे इंक्लूड कर लिया था ऑटोमोबाइल्स के साथ. सो आईटी के बारे में बता देती हूँ. बैंगलोर यू कैन से इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. और जो दूसरे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें आप नोएडा लिख सकते हो, आप मुंबई लिख सकते हो, आप चेन्नई लिख सकते हो और बैंगलोर तो है. तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो भी काफी ग्रोथ हुई है हमारी कंट्री में पिछले कुछ सालों में. So these are all points related to the industries. Now one sensitive issue which I am going to discuss about is industrial pollution. ये जो इंडस्ट्रीज है इनकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज होता है. 4 तरीके का पॉल्यूशन है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रीज. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन वैसे तुमने इन सब पॉल्यूशन के बारे में जनरल नॉलेज हर बच्चे को होती है कि एयर पॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है. सो रिलीज ऑफ यू कैन से हार्मफुल गैसेज इन द एनवायरमेंट और इन द एयर इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन. कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि विच इज वेरी हार्मफुल. सो हाई proportion of undesirable gases are being produced by these industries in the atmosphere which is really very harmful for people. जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करो तो पेपर इंडस्ट्री है तो या केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे बहुत ज्यादा ये स्मोक रिलीज होती है जिसके अंदर ये पॉइजनस गैसेस होती हैं. सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. हर तरीके का जो वेस्ट होता है, देखो जब जैसे हमने बात की, जब मैंने बताया आपको स्टील कैसे बनाया जाता है तो जैसे इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं. स्मेल्टिंग की भी अगर हम बात करें तो जो डस्ट है, इम्प्योरिटीज है, उनको अलग किया जाता है. तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है. दोनों तरीके का होता है, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है. ये जो वेस्ट है इसको अगर छोड़ दिया जाता है रिवर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है. पानी की क्वालिटी को डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. So that is water pollution. Next is thermal pollution, is draining hot water from factories and thermal plants into rivers and ponds before cooling. थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां से जो ये पानी निकलता है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और ये पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है रिवर्स में और पॉन्ड्स में बिना ठंडा किए. जो रिवर्स में या पॉन्ड्स में या जिस भी तरीके की हमारी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एक आदत होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहने की, जो उनकी वाटर बॉडी का टेम्परेचर होता है. लेकिन जब उसके अंदर ये गर्म पानी जो है बड़ी लार्ज क्वांटिटी में रिलीज कर दिया जाता है तो वो टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है एंड दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ. तो जैसे कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हमारे, मतलब उनसे काफी इसमें निकलता है ये वाला जो वेस्ट है या ये पानी जो है. नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन. Noise pollution basically refers to unwanted sound present in the atmosphere or in the environment.
तो हमारी जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, जो मशीन्स चलती हैं, आवाजें करती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, उनमें भी जो कुछ मशीनरी इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा आवाज होती है, और वो जो आवाज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। जैसे कि अगर हम इसके बैड इफेक्ट्स की बात करें तो इट कैन इवन लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब किसी इंसान को लाइफ लॉन्ग ये बीमारी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल कंडीशन, कि उसको सुनना बंद हो जाए या कम सुनना शुरू हो जाए। इसी तरीके से ये जो नॉइज होती है कई जगहों पे ये इतनी ज्यादा तेज होती है, इट कैन इवन लीड टू हार्ट मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके भी पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहली बात है, अगर हम वाटर की, जैसे हमने बात की कि वाटर को रिलीज कर दिया जाता है बिना ठंडा किए, तो एक यहाँ पे स्टेप उठाया जा सकता है कि इस पानी को पहले ट्रीटमेंट किया जा सकता है पानी का। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वैसे अब सेटअप हो गए हैं कई जगहों पे, तो वो एक जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसके थ्रू ये जो वाटर वेस्ट है, इस वाटर वेस्ट को प्योरीफाई मतलब ट्रीट किया जा सकता है 3 प्रोसेसेस के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। और उन प्रोसेसेस से जब ये पानी ट्रीट हो जाता है तो फिर इसको छोड़ दे सकते हैं वाटर बॉडीज में, तो फिर ये हार्मफुल नहीं होता है। तो वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। नॉइज पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरीज जहाँ पे बहुत आवाज करती हैं, तो वहां पे जैसे कि साइलेंसर्स लगाए जा सकते हैं उन मशीन्स में, तो थोड़ा सा उसको कम किया जा सकता है। इसी तरीके से उसमें उस जगह पे रहने वाले जो मतलब वर्कर्स हैं या लोग हैं, तो हियरिंग जो अपना ये यूज कर सकते हैं, हियरिंग एड्स वगैरह, तो वो भी हेल्पफुल हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं जिनसे ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। जो स्मोक रिलीज होती है व्हीकल्स के थ्रू, सो पॉल्यूशन चेक कराया जा सकता है वक्त वक्त पे, वो भी है एक कारण। बट येस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हीकल पॉल्यूशन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो ये सारे इसमें स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। So this is all about this chapter. Now I will upload one video related to 1 mark question answers for this chapter, and that I will उसमें मैं पूरा का पूरा जो points वाले जो information है, facts हैं जो, वो सारे उसमें include करूँगी. So stay tuned for that. Thank you so much. I hope you enjoyed the class.